Hello students, today we are going to do first chapter of your class, The World of Colors, 6 standards, first unit, The World of Colors. Before I move on towards the chapter, right, let me just ask you a question. How many of you love colors? Everybody, right? We all of us love colors, right? The whole world is full of colors. So today we are going to study about the colors of rainbow, right? Beautiful rainbow. So actually what happened one day, there was a quarrel, right? Argument हो गया था. किसके बीच? All the 7 colors of the rainbow. ठीक है? All 7 colors of the rainbow जो होते हैं, उनके बीच में arguments हो गया था. So we are going to study in this chapter about the quarreling colors. ठीक है? The quarreling colors. Quarreling means the arguments. So let me just move on. Ki what did they do and how they quarreled. The quarreling colors. Part 1. Long, long ago, the colors in the rainbow started to quarrel. I wonder what happened. All the colors in the rainbow, all the 7 colors in the rainbow, they started to quarrel. They started arguing with each other. Each color thought it was the most important color of all. अब क्या हुआ? All 7 colors जो थे, वो सब बताने लगे कि I am important. Violet ने बोला मैं important हूँ. Indigo ने बोला मैं important हूँ. Blue ने बोला मैं important हूँ. Green, yellow, orange, red, they said we are important. तो हर एक कलर जो था ना, वो अपनी importance बता रहा था कि I am very important. So let us see what did they say. First, Violet said, I am the color of humility and wisdom. I am the most important. So, violet color जो rainbow में होता है, right? उसने क्या बोला? I am the color of humility. What is the meaning of humility? देखो मैंने यहाँ पर click किया है, right? Humility का मतलब है humbleness. ठीक है? Humble होना, right? तो वायलेट बोलता है आई एम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई हैव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमिलिटी, आई हैव द क्वालिटी ऑफ हम्बलनेस एंड विजडम. विजडम का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस, नॉलेज, बीइंग वाइज, है ना? तो he said that is why I am very important because I have a quality of humbleness, I have the quality of wisdom, I'm wise, so I'm very important. So next, indigo. जो second color है रेनबो में, इंडिगो. इंडिगो स्पोक सॉफ्टली. इंडिगो ने बहुत धीरे से बोला आई एम द कलर ऑफ साइलेंस. और वो बोलता है आई एम द कलर ऑफ साइलेंस. कौन बोल रहा है? इंडिगो. यू नीड मी फॉर पीस एंड प्रेयर. आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. तो इंडिगो बोलता है आई एम द कलर ऑफ साइलेंस. ठीक है? यू नीड मी when you want peace, जब आपको शांति चाहिए, when you pray, जब हम प्रेयर करते हैं तो हमें कैसा फील होता है? वी फील रिलैक्स्ड, यू नो, हम पीस पे होते हैं. ठीक है? शांति मिलती है हमें when we are praying. So he's saying you need me, right? When you are at peace and when you are praying. So I am most important. Then afterwards the third color, blue. Blue interrupted. तो ब्लू भी बीच में बोलता है, इंटरप्ट करता है और बोलता है आई एम द कलर ऑफ वाटर. राइट? what do we say? I mean, what did the blue color say? I am the color of water. Water makes up life. Saying मैं water का कलर हूँ. ठीक है? water मेरे कलर जैसा होता है, ब्लू कलर. ठीक है? और water is life. बिना water के तो हम रह ही नहीं सकते. Without me you would be nothing. तो ब्लू कलर बोलता है अगर मैं नहीं होता तो आप सब लोग होते ही नहीं.
क्योंकि अगर मैं नहीं होता तो वाटर को कलर नहीं मिलता, और वाटर को कलर नहीं मिलता तो हमारी लाइफ नहीं होती, बिकॉज वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लाइफ। ऐसा ब्लू कलर बोलता है। देन ग्रीन सेड, आई एम द कलर ऑफ नेचर, दैट इज वाई आई एम द बेस्ट। तो ग्रीन कलर बोलता है आई एम द कलर ऑफ नेचर। पूरी तरफ अगर देखा जाए, राइट, मैं कैसा हूँ, मैं नेचर को कलर देता हूँ, राइट। जब मैं नेचर को कलर दे रहा हूँ तो दैट इज वाई आई एम द बेस्ट। येलो स्माइल, तो फिर येलो कलर स्माइल करता है और बोलता है आई एम बीइंग वार्म्थ टू द वर्ल्ड, राइट। बोले आई ब्रिंग वार्म्थ टू द वर्ल्ड, द सन, द मून एंड द स्टार्स आर ऑल येलो। आई ब्रिंग वार्म्थ टू द वर्ल्ड मतलब वार्मनेस देना, राइट, लव देना, ठीक है। तो बोलता है आई ब्रिंग वार्मथ टू द वर्ल्ड। और सन, मून, स्टार्स, ये सारे कलर्स मेरे से हैं, राइट, बिकॉज दे ऑल आर येलो। तो ऑरेंज हंसता है, ऑरेंज लाफ्ड, आई एम द कलर ऑफ करेज, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेज? करेज का मतलब होता है ब्रेवरी। देखो मैंने यहाँ पर मीनिंग लिखा है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेज? ब्रेवरी। तो ऑरेंज बोलता है आई एम द कलर ऑफ करेज, आई एम द कलर ऑफ ब्रेवरी। श्योरली आई एम द बेस्ट, राइट। तो बोलता है श्योर, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई एम द कलर ऑफ ब्रेवरी, राइट। तो मैं सबसे बेस्ट हूँ। तो रेड शाउटेड, तो फिर रेड शाउट करके बोलता है आई एम द साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड अथॉरिटी। तो बोलता है मैं, आई एम द साइन ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है फिजिकली स्ट्रांग होना, है ना, राइट, फिजिकली स्ट्रांग होना, स्ट्रांग। तो रेड बोलता है आई एम द साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो आई एम द साइन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? टू गिव ऑर्डर्स, राइट, द पावर टू गिव ऑर्डर्स टू समबडी, ठीक है। तो रेड कलर बोलता है कि आई एम द, I have the sign of authority, I am the sign of authority and I am the sign of strength, so I am the best. तो ये सब जो कलर्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी अपनी क्वालिटी बताते हैं और फिर बोलते हैं कि वी आर द बेस्ट, राइट। अब यहाँ पर इंडिविजुअली इंडिविजुअली ऑल द कलर्स ने अपनी अपनी क्वालिटी बताई, राइट, एंड दे टोल्ड अस कि सब अपने वे से कितने अच्छे हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं अपनी लाइफ में, राइट। तो वो क्वारल कर रहे थे, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे कि वी आर द बेस्ट, वी आर मोर देन यू, ओके। So this is the way they argued and this is the way they quarreled. This story even has second part, right? Now let us see कि second part में फिर क्या होता है. The quarreling colors part 2. अब जब ये सारे कलर्स आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे, क्वारल कर रहे थे, saying that we are the best, we are the best, सब अपनी अपनी इंपॉर्टेंस बता रहे थे ना. तो suddenly what happens, you know, suddenly there was a thunder and lightning and it began to rain heavily. और suddenly क्या हुआ? एकदम थंडर, राइट, थंडर हुआ, लाइटनिंग हो गई और जोर से बारिश पड़ गई, बहुत हैवी रेन हो गया. The 7 colors, अभी आर्ग्यूमेंट्स कौन कितने कलर्स कर रहे थे? 7 कलर्स आर्ग्यू कर रहे थे. कौन कौन से? The 7 colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red all heard the angry voice of the rain. और उन सारे 7 कलर्स जो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे, उन्होंने गुस्से वाली आवाज सुनी रेन की, है ना. कई बार आपकी क्लास में भी ऐसे होता है ना कि जब बाय चांस टीचर अगर नहीं होते हैं तो आप सब लोग एक दूसरे से क्वारल करते रहते हो और सडनली एकदम यू हियर द वॉइस ऑफ द टीचर, राइट, और
टीचर की ऐसे आईज अगर देखते हो, या टीचर अगर एकदम बोलती है गुड मॉर्निंग एंड यू हियर टीचर इज कमिंग और टीचर इज सेइंग गुड मॉर्निंग, तो एकदम चुप हो जाते हैं हम, है ना। तो उसी तरह ये 7 कलर्स भी क्वारल कर रहे थे और उन्होंने गुस्से वाली आवाज सुनी, एंग्री वॉइस ऑफ द रेन सुना, और वो रेन ने क्या बोला, यू स्टूपिड फुलिश कलर्स, व्हाई आर यू फाइटिंग अमंग योरसेल्व्स। और रेन ने गुस्से में बोला कि यू स्टूपिड फुलिश कलर्स, ऑल 7 कलर्स, व्हाई आर यू फाइटिंग, तुम सब लोग एक दूसरे के साथ लड़ क्यों रहे हो, फाइटिंग मतलब लड़ना, ठीक है, व्हाई आर यू फाइटिंग, डोंट यू नो ईच ऑफ यू इज इम्पोर्टेंट। तो रेन ने बोला, क्या आप लोगों को पता नहीं है कि सब इम्पोर्टेंट है, आप सब लोग इम्पोर्टेंट हो। द लाइटनिंग स्टॉप्ड एंड द थंडर क्वाइटेड, और एकदम लाइटनिंग स्टॉप हो जाती है और थंडर जो होता है वो भी क्वाइट हो जाता है, बंद हो जाता है ना। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, फिर हम सोचते हैं कि भाई मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, राइट, हम अपने अपने वे से कि नहीं उससे ज्यादा तो मैं इम्पोर्टेंट हूँ, उससे ज्यादा तो मैं इम्पोर्टेंट हूँ। लेकिन हमें एक चीज समझनी चाहिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्कूल के लिए, राइट, ऑल द चिल्ड्रन आर इक्वल, right, and all the children are important because your parents and your teachers, they love you a lot, right। तो कभी ऐसा नहीं होता है कि एक बच्चा important होता है, एक बच्चा important नहीं होता है, नहीं, all are important, है ना। और गॉड ने भी सबको डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट दिया है, राइट। तो कोई देखो पेंटिंग में अच्छा होता है, कोई ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, किसी का म्यूजिक बहुत अच्छा होता है, राइट। एवरीबडी हैज डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट, राइट, बिकॉज वी आर ब्लेस्ड विद द गुड क्वालिटीज, right, what god has given us beautiful different qualities, so we all of us are important, है ना। तो कोई भी कम इम्पोर्टेंट और ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, सब एक तरह से होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेन ने, अब देखते हैं रेन ने उन कलर्स को क्या बोला। द रेन सेड, लिसन टू मी, ईच ऑफ यू हैज अ स्पेशल पर्पस। तो रेन उनको समझाती है और बोलती है, लिसन टू मी, मुझे सुनो। सारे कलर्स को बोलती है ईच ऑफ यू, हर एक कलर को एक स्पेशल पर्पस से भेजा गया है। यू ऑल हैव अ स्पेशल पर्पस। व्हेन आई स्टॉप द स्टॉर्म, यू मस्ट ऑल होल्ड हैंड्स एंड हेल्प ईच अदर। तो बोले कि अगर मैं स्टॉर्म को स्टॉप करती हूँ, तब आप सब 7 कलर्स, all the 7 colors, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, तो वो बोलती है उन सबको, ऑल 7 कलर्स को, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ना और हेल्प करना ईच अदर की। यू विल हेल्प ईच अदर स्ट्रेच अक्रॉस द स्काई टू मेक द रेनबो। तो बोलती है कि आप सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर, और यू हैव टू स्ट्रेच अक्रॉस द स्काई, राइट। और फिर क्या बन जाएगा, एक दूसरे का वो लोग हाथ पकड़ेंगे or they are going to stretch across the sky. So what are you going to become? You won't have your own identity. कोई भी पर्टिकुलर हर एक कलर को खुद की आइडेंटिटी नहीं होगी, आप सब यूनाइटेड हो जाओगे। एंड जब यूनाइटेड हो गए तो वो क्या बन जाएगा, रेनबो, है ना। कितना ब्यूटीफुली रेन उनको समझाती है, क्योंकि देखो अलग अलग कलर होगा तो इतना एडमायर लोग नहीं करते, लेकिन वो 7 के 7 कलर्स यूनाइट हो जाते हैं और रेनबो बन जाता है। तो कितना ब्यूटीफुल लगता है ना रेनबो, राइट। सो ब्यूटीफुल इट इज। सो ऑलवेज व्हेन वी आर यूनाइटेड, द ब्यूटी इज व्हेन वी आर यूनाइटेड, है ना। So that is what rain is trying to tell them. The rainbow is a special sign. It shows that if we all work together and help each other, even with our differences, we will all shine very well. और रेन उनको क्या समझाती है कि अब हम सब लोग एक साथ मिलकर
राइट, कोई काम करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, राइट, तो वी ऑल विल शाइन। ठीक है, हम सब शाइन करेंगे, राइट। अब देखो अभी ये सिचुएशन हो रही है कोरोना कोविड की, है ना, तो आप सब देखो सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, द पीपल हु आर क्लीनिंग, राइट, and teachers, parents are cooperating with us, students are also helping us, students are cooperating with us, school and teachers are helping the parents and the teachers, I mean parents and the children, right, all the teachers are helping each other, राइट। तो अब देखो वर्ल्ड में सब हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, तो हम वो सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं कि नहीं? यस, बाहर आ रहे हैं कि नहीं? तो कभी भी कोई भी डिफरेंसेस होते हैं, राइट, हम सब अगर यूनाइटेड हो जाते हैं तो वो वर्क जो है बहुत अच्छी तरह से हम कंप्लीट कर पाते हैं, एंड देन वी विल शाइन। सो द कलर्स अंडरस्टूड देयर मिस्टेक्स। तो अब कलर्स को पता चल गया कि एक इंडिविजुअल की कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती है, एक इंडिविजुअल की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। जब हम यूनाइटेड हो जाते हैं, राइट, तो हम स्टॉर्म को भी एंड कर सकते हैं, जब हम हैंड्स को अगर जॉइन कर लेते हैं, इफ वी जॉइन टुगेदर, इफ वी वर्क टुगेदर, right? So the colors understood their mistake. The storm ended and the colors happily joined hands. और उनकी आर्ग्यूमेंट्स जो है वो स्टॉप हो गई, वो फिर से फ्रेंड्स बन गए, and they were very happy. They joined hands with each other and they realized that they are all equal, right? And they all are friends. And we can achieve anything in the world if we are united. They understood this when Rain explained them and advised them. Is it clear till here? Right? You understood the chapter?